Hello students, today we are starting with SS, right? Now in SS we have three sections: history, geography and civics for your 9th standard. So let's get started with history chapter 1. So please open your textbook and go to page number 3. Page number 3, students. The rise of British rule in India. Now students, I am reading from page number 3. Since the ancient period, India has enjoyed an incomparable position in the whole world due to its economic, cultural and religious inheritance. Inheritance means जो हमें वारसागत चीजें मिलती है, ग्रैंडफादर से फादर को मिलती है, फादर से बच्चे को मिलती है. तो इकोनॉमिक यानी पैसे हमको मिलते हैं, कल्चरल यानी हमारा कल्चर, हमारे संस्कार मिलते हैं, एंड रिलीजियन हमको मिलता है फ्रॉम अवर forefathers. Due to the economic prosperity and cultural inheritance, people from other nations of the world came to India. अब इसमें क्यों ये इंडिया में आए? You already know this. Importance of India was demand for Indian spices, muslin, silk, cloth, indigo, etc. Trade between India and Europe was initially carried out through the land route. ये कॉन्स्टेंटिनोपल से लैंड रूट आता था, इस्तांबुल से. बट आफ्टर द कॉन्टेस्ट ऑफ Constantinople in 1453 by the Turkish Muslims, the sea route through Constantinople was closed for the Europeans. So ये जो लैंड रूट और सी रूट ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल से होके आता था, it was closed down because the Constantinople was captured by the Turkish Muslims and Europeans were forbidden to go through that place. Since they could not do without the spices, अब इनको हमारी चाय के बगैर तो चलेगा नहीं, मसालों के बगैर तो चलेगा नहीं. So Europeans felt the need to discover a new sea route. So this is how an era of geographical discoveries began. अब geographical discoveries में सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट टू इंडिया कहां से स्टार्ट हुआ, बराबर. तो ये सबसे पहले इकोनॉमिक हेल्प फ्रॉम प्रिंस हेनरी. सम ब्रेव पीपल बिगेन एफर्ट्स टू डिस्कवर न्यू सी रूट टू इंडिया. मेनी ग्रेट मैन ट्राइड टू फाइंड इट एंड इसमें बार्थोलोम्यू डियास ये he discovered the Cape of Good Hope in South Africa. Correct? With help from King प्रिंस हेनरी. तो ये पोर्टुगीज की तरफ से. दूसरा एफर्ट लगाया गया विद द इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम किंग ऑफ स्पेन. तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस. डिस्कवर्ड अमेरिका with help of King of Spain. And finally, after these discoveries came the discovery of India. So Portuguese sailor Vasco da Gama
sailed to India. In 1498 AD, and he was welcomed at Calicut by King Zamorin. So students, these are the important points from the page number 3. पेज नंबर 3 में ये जो आंसर है इसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. आप या तो ये नोटबुक में लिख सकते हो या फिर आप ये पेज नंबर 3 पे टेक्स्ट बुक पे अंडरलाइन कर दीजिए ये जो लाइंस है इनको. बराबर. ये डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया जो है इसके अंदर ये लाइंस है. ये लाइंस या तो आप टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर दीजिए या फिर आप नोट डाउन कर दीजिए बुक में. सो यू हैव अंडरस्टूड हाउ the discovery of India took place. These two people were not able to find India. They set out to find India. बार्थोलोम्यू डायस इंडिया को ही ढूंढने निकला था, लेकिन ये जब साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पे पहुंचा इसको लगा ये इंडिया के साउथ पे है, पर एक्चुअली वो पहुंचा था अफ्रीका के साउथ पे. राइट. दूसरा है क्रिस्टोफर कोलंबस. ये एक्चुअली इसने ऐसा सोचा कि ये इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे पहुंच गया है, लेकिन पहुंचा था अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे. तो ये दोनों दिशा भटक गए थे. सबसे पहले जो इंडिया तक पहुंच पाए सक्सेसफुली ही वॉज पोर्टुगीज सेलर वास्को डा गामा हु सेल्ड टू इंडिया इन 1498 एंड ही वॉज वेलकम्ड एट कैलिकट बाय किंग ज़ैमोरिन. So, arrival of Europeans and the establishment of trade centers. So, within a span of 100 years, Portuguese took control of several territories like Diu, Daman, Goa, Cochin and Malacca. So, we can say that Portuguese arrived in 1498 AD, correct? And after that, they established several territories like Diu, Daman, Goa, Malacca, and Kochi, right? इसके बाद आए डच. So Dutch arrived later, correct? इसके बाद आते हैं डेनमार्क. So then came डेनमार्क. और इसके बाद आते हैं इंग्लिश. ब्रिटिश की इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट? दे अराइव्ड इन सूरत इन 1600 AD. अब स्टूडेंट्स, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये यूरोपियन मर्चेंट्स की एक कंपनी है. ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ये एक कंपनी ऑफ मर्चेंट्स थी जिनको इनकी क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन दी थी इंडिया के साथ ट्रेड करने की. ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनीज थी. कंपनी किसको कहते हैं? मर्चेंट्स के एक ट्रेड यूनिट को कंपनी कहते हैं. जब बहुत सारे मर्चेंट्स हो, उनके ग्रुप्स हो, तो उन ग्रुप्स को कहते हैं कंपनी. तो ऐसे ब्रिटेन में बहुत सारे मर्चेंट्स के ग्रुप्स थे जो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन दी सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. और ये परमिशन कब दी? 1600 में. एंड उसी साल
सूरत में इनका पहला शिप आया। ड्यू टू डोमिनेंस एंड ऑपोजिशन फ्रॉम पोर्टुगीज, अब तब तक क्या है, पोर्टुगीज ने ऑलरेडी सूरत पोर्ट कैप्चर कर दिया था, तो दे वर नॉट अलाउड टू ट्रेड विथ इंडिया इन सूरत। But finally, the East India Company got the permission from Mughal Emperor Jahangir, right? So they sought permission of Mughal Emperor Jahangir and started ट्रेड विथ इंडिया। ये सिर्फ स्टूडेंट्स ब्रिटिशर्स का स्टार्टिंग पॉइंट था, इंडिया के साथ ट्रेड करना, लेकिन उनका एक्चुअल मोटिव था इंडिया को गुलाम बनाना। उनका ये बड़ा प्लान था कि पहले इंडिया के साथ ट्रेड किया जाए, इंडिया को समझा जाए और फिर उसको कॉलोनाइज किया जाए। कॉलोनाइज मतलब उसको अपने नीचे लाया जाए। Initially, the company established first trade center. तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला ट्रेड सेंटर जो है ये इन्होंने बनाया सूरत में इन 1630। उसके बाद इन्होंने सूरत, भरूच, अहमदाबाद में बनाया। So because of the strong presence of Marathas, the company sensed danger to their existence and then they moved towards south and east directions. इसके बाद इन्होंने मछलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश, सेंट जॉर्ज जो प्रेजेंट डे चेन्नई को बोलते हैं, और फोर्ट विलियम बनाया कलकत्ता में। मुंबई बिकेम देयर हेडक्वार्टर्स इन 1687-80, राइट। तो सबसे पहला पोर्ट सूरत 1613 में, राइट। फर्स्ट पोर्ट वाज सूरत। In 1630, right? And headquarters was Bombay. In 1687, correct? या तो इतना नोट डाउन कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर दीजिए स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं फ्रेंच। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ये फ्रांस के मर्चेंट्स की कंपनी। बराबर। दे अराइव्ड इन इंडिया इन 1668 और इन्होंने अपने 5 सेंटर्स एस्टैब्लिश किए, जो है फ्रेंच के सेंटर्स है चंद्रनगर, माहे, कराईकाल एंड पौंडीचेरी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 जगह पे फ्रेंच ने अपने सेंटर्स एस्टैब्लिश किए। बराबर। ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का है जब ये इंडिया में आए थे। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमने 5 पावर्स की बात की, पोर्टुगीज, डच, डेनमार्क, फ्रेंच और ब्रिटिश, ये सब यूरोपियन कंपनीज इंडिया के साथ सोल ट्रेड करना चाहते थे। सोल ट्रेड मतलब अकेले ट्रेड करना चाहते थे, इनको एक दूसरे से जेलसीज थी। अब इसका नतीजा ये हुआ कि ये जो साउथ इंडिया का रीजन है जिसको हम प्रेजेंट डे कर्नाटक बोलते हैं, उस टाइम पे उसको बोलते थे कर्नाटिक। आज कर्नाटक, उस टाइम पे कर्नाटिक बोलते थे। तो कर्नाटिक वॉर्स होने लगी। किसके बीच में? ये 5 पावर्स के बीच में कर्नाटिक वॉर्स। इसमें ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज, डच और डेनमार्क, ये 5 के बीच में
जब कोई एक शिप आता था अरेबियन सी में, तो दूसरे सुपर पावर का शिप उसको डुबाने का ट्राई करता था। और स्टूडेंट्स, हकीकत तो ये है कि आज के टाइम पे अरेबियन सी में अब तक वो जहाज डूबे पड़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अरेबियन सी का वो रीजियन किसी भी कंट्री के कोस्ट लाइन में नहीं आता, वरना हम अपने डाइवर्स बेच के उस सोने खजाने को निकाल भी सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ओशियंस और सी के अंदर किसी एक कंट्री का नेविगेशन अलाउड नहीं होता, और ये हिस्टोरिकल नेविगेशन है, तो इसके लिए तो बहुत सारी इंटरनेशनल परमिशन चाहिए। ठीक है, तो ऐसा सोचना भी मत कि चलो हम जाके डुबकी मार के लेके आते हैं, बहुत सारा सोना खजाना सब लेके आते हैं, ऐसा सोचना मत। है बहुत सारा, पूरा अरेबियन सी एक स्टोर हाउस है, क्योंकि ये कर्नाटिक वॉर्स बहुत लंबी चली थी। इसमें खास करके फ्रेंच और ब्रिटिश तो जितना इंडिया से गोल्ड और ये सब लेके जाते थे, वो तो जहाज के जहाज डूबे पड़े हैं अंदर। लेकिन वो सब इनएक्सेसिबल है, क्योंकि अरेबियन सी के जो बॉर्डर कंट्रीज है उसके एकदम ये बीचों बीच है अरेबियन सी के। तो ये बॉर्डर कंट्रीज में से किसी का भी रीजन उतना क्लोज नहीं है उस खजाने के कि वो कंट्री को राइट्स मिल सके उस खजाने को टच करने की। ठीक है, सो यू हैव अंडरस्टूड दिस, प्लीज नोट डाउन दिस फ्रेंच रीजन्स। अब स्टूडेंट्स, till now we have studied about Britishers who arrived in India as traders. Now students, we are going to the part of the chapter where the Britishers will start ruling India. उस टाइम पे स्टूडेंट्स स्टेट ऑफ बंगाल जो था वो सबसे बड़ा स्टेट था इंडिया का। आज के टाइम का अगर हम देखें तो इंडिया का 1/3 पोर्शन बंगाल था उस जमाने में। आज के टाइम के इंडिया का 1/3 पोर्शन उस जमाने का बंगाल था। क्योंकि अभी जो आप देखते हो मैप में, वेस्ट बंगाल का रीजन है इंडिया में, आपको पता है, वेस्ट बंगाल कलकत्ता वाला रीजन। वेस्ट बंगाल के ईस्ट में है बांग्लादेश। स्टूडेंट्स, उस टाइम पे पूरा बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बाजू के 2 स्टेट्स यानी बिहार और झारखंड, ये भी इंडिया के बंगाल में ही इंक्लूड होते थे। समझे? तो वी कैन से ये बैटल ऑफ प्लासी की बात हम कर रहे हैं। बैटल ऑफ प्लासी के रीजन्स, ब्रिटिशर्स wanted to rule over Bengal. It was the largest and richest state of India at that time. It included present day Bihar, Jharkhand, West Bengal and बांग्लादेश। पूरा कंट्री उस टाइम पे बंगाल में आता था। तो इनका रूलर कौन था? सिराजुद्दौला। द रूलर ऑफ बंगाल destroyed the fort of ब्रिटिश। सिराजुद्दौला को क्या चाहिए था? सिराजुद्दौला को चाहिए था कि ब्रिटिशर्स जो है वो सिर्फ अपनी औकात में रह के ट्रेड करे,
जहांगीर बादशाह से आपको ट्रेड करने की परमिशन मिली है, अपनी लाइन क्रॉस मत करो, ट्रेड की परमिशन मिली है, ट्रेड करो। ये क्या है, ये पोर्ट्स बनाते हो नहीं, ये क्या है, ये सब ये फोर्ट बनाना नहीं, ये सब क्या है। तो सिराजुद्दौला को बहुत गुस्सा लगा, उसने ब्रिटिशर्स के फोर्ट का एक हिस्सा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ब्रिटिशर्स को जब ये पता चला तो ब्रिटिशर्स सेंट रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन, ही स्टार्टेड द रूल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। इसने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव रिसोर्टेड टू ट्रीचरी। इसमें इसने he asked commander in chief Mir Jafar and Seth Amichand to go against their own नवाब। और इन्हीं की वजह से स्टूडेंट्स बैटल ऑफ प्लासी ये 1757 में एक ही दिन में खत्म हो गया, क्योंकि कमांडर इन चीफ मीर जाफर, ये किसकी सेना का पति था, ये सेनापति थे सिराजुद्दौला के। लेकिन सिराजुद्दौला के सेनापति खुद ब्रिटिशर्स के साथ मिले हुए थे। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो, सेना के सोल्जर्स किसको फॉलो करते हैं, किंग के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, सेनापति के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। कमांडर इन चीफ के ऑर्डर को फॉलो करती है सेना, किंग के ऑर्डर को फॉलो नहीं करती। आर्मी भले किंग की होती है, लेकिन ऑर्डर्स कमांडर इन चीफ के होते हैं। तो कमांडर इन चीफ जो था उसने सिराजुद्दौला की जगह रॉबर्ट क्लाइव की हेल्प की इन द वॉर। इसके अलावा सेठ अमीचंद जो बहुत सारे पैसे देते थे आर्मी के मेंटेनेंस के लिए, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को हेल्प किया। सो अल्टीमेटली द ब्रिटिश आर्मी सक्सीडेड इन डिफीटिंग सिराजुद्दौला। ही वाज किल्ड इन द बैटल ऑफ प्लासी, और उसकी जगह पे मीर जाफर को बंगाल का बादशाह बनाया गया। बंगाल का बादशाह बना के ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को यह कंडीशन रखी कि तुम बंगाल रूल करोगे, हम टैक्सेस कलेक्ट करेंगे। इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रूलिंग बंगाल, क्योंकि सरकार का हक होता है टैक्स लेना। तो सरकार ब्रिटिशर्स की टैक्स ले रही थी और मीर जाफर सिर्फ एक पपेट रूलर, एक कठपुतली बन के रह गया, क्योंकि पूरा पैसा जनता का कहा जा रहा था, सीधे इंग्लैंड। लोगों के पास से जो टैक्स वसूले जा रहे थे सीधे इंग्लैंड जा रहे थे। बंगाल का खजाना हो गया खाली। मीर जाफर एक खाली गरीब बादशाह बन के रह गया। यस, गरीब बादशाह। तो इसमें कंपनी को 24 परगनास, उस टाइम पे लैंड मेजर होता था परगना, जैसे अभी हम एरिया कहते हैं उसको परगना कहते थे। तो 24 परगनास लैंड ब्रिटिशर्स को मिल गया एंड मीर जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। The foundation of British rule in India was laid with the Battle of Plassey. तो स्टूडेंट्स ये इतना अंडरलाइन कीजिए, और इसके बाद वाली ये जो लास्ट लाइन है, मीर जाफर lost the battle, Sirajuddaulah was defeated, and due to Robert Clive's treachery, Battle of Plassey ended in half a day. British got hold of 24 Parganas. मीर जाफर was made Nawab of Bengal. ये पूरा आपको अंडरलाइन करना है, इतना तो करना ही है। उसके बाद का ये जो पैराग्राफ है पेज नंबर 5 पे, वो भी अंडरलाइन करना है। बैटल ऑफ प्लासी का लास्ट पैराग्राफ, प्लीज नोट डाउन।
Now students, we are coming to Battle of Buxar. This was the second battle. अब स्टूडेंट्स पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं. ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को क्यों किंग बनाया था? ताकि वो टैक्स वसूल कर सके. लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि मीर जाफर जो अपने राजा का सगा नहीं हुआ, ब्रिटिशर्स का क्या खाक सगा होगा. तो मीर जाफर ने क्या किया? मीर जाफर ने स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स को टैक्स लेने दिया, लेकिन फिर अपनी मनमानी शुरू कर दी कि नहीं, मैं टैक्सेस नहीं दूंगा, मैं अपने लोगों से टैक्स लेने नहीं दूंगा. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? मीर जाफर के सन इन लॉ मतलब मीर जाफर की जो डॉटर थी उसके हस्बैंड को, डॉटर का हस्बैंड, जमाई बोलते हैं, ठीक है, मीर कासिम, उसको राजा बना दिया. मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को राजा बना दिया. अब मीर कासिम जो था ना, वो मीर जाफर से भी ज्यादा होशियार. तो मीर कासिम ने तो उल्टा ब्रिटिशर्स को बिल्कुल ही कोई भी टैक्स, तो क्या रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू सब कुछ बंद कर दिया. ब्रिटिशर्स ने सोचा यार अब तो हम क्या करें. तो ब्रिटिशर्स ने अगेन मीर कासिम को निकाल के मीर जाफर को ही वापस बिठाया. बरोबर. अब मीर कासिम जो है वो चला गया टू द नवाब ऑफ अवध, और उसके अलावा शाह आलम द सेकेंड ऑफ दिल्ली. तो बैटल ऑफ बक्सर स्टूडेंट्स, शाह आलम द सेकेंड ऑफ दिल्ली, नवाब ऑफ अवध और मीर कासिम, ये तीनों की मिक्स्ड आर्मीज ब्रिटिशर्स के साथ टकराई इन द बैटल ऑफ बक्सर. एंड अगेन ब्रिटिशर्स वन दैट बैटल, एंड दिस वाज इन 1764. तो यहां पे स्टूडेंट्स मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं. तो ब्रिटिशर्स हैड टू रिमूव मीर जाफर एज they wanted more powers, right? They placed his son-in-law Mir Qasim on the throne, but Mir Qasim was even more ambitious. So again, Mir Jafar was placed. Mir Qasim, along with Shah Alam of Delhi and Nawab of Awadh, started the battle of Buxar with the British. The British defeated their joint army. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बैटल ऑफ बक्सर है. ब्रिटिशर्स हैड टू रिमूव मीर जाफर बिकॉज दे वांटेड मोर पावर्स, मोर रेवेन्यू. They placed his son-in-law Mir Qasim. तो
मीर जाफर के तेवर देखते हुए ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को बिठाया। मीर कासिम वॉज इवन मोर एम्बिशियस, उसने तो उतनी भी परमिशन नहीं दी जितना मीर जाफर देता था। सो अगेन मीर जाफर वॉज प्लेस्ड, लेकिन मीर कासिम जो है, ही along with शाह आलम ऑफ दिल्ली एंड नवाब ऑफ अवध, ये तीनों ने हाथ मिला लिया एंड दे स्टार्टेड द बैटल ऑफ बक्सर एंड द ब्रिटिश defeated their joint army, and because of that they got even more land of entire North Indian region. तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा उस टाइम के ये तीनों ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गए। ये पूरा यूनाइटेड आर्मी डिफीट हो गया। प्लीज नोट डाउन। So students, here we are stopping with this lecture. In the next lecture, we will see how the Britishers expand their rule in India, right? After consolidating their rule with these two battles, they set to conquer the rest of India. नॉर्थ का रीजन आ गया उनके हाथ में, लेकिन वेस्ट का, सेंट्रल का, साउथ का रीजन अभी भी बाकी है. So they will set out to take all those states of India under their rule, and how they do that we will study in next lecture. Till then, goodbye students.